Good morning, everyone. I am Apeksha, Assistant Professor in Indraprastha Law College. So, today's topic will be on Article 16, that is equality of opportunity in matters of public employment. Let us start. So, we have done Article 14 and 15, and this is about 16 now. So, these three articles, they talk about equality, right? We have done Article 14. Article 14 tells about equality. They have discussed about equality in the widest sense. Then come Article 15, which protects the equality and prohibits the discrimination on the basis of those 5 grounds, which I have already told you. Then Article 16, which talks about equality, which again discusses about the equality, but it is limited to the employment and appointment matters. So तीनों में इक्वालिटी की ही बात हुई है, बट 14 में ये वाइडर सेंस में ये जो ये डायग्राम है, ग्राफ है, इससे आप थोड़ा ये समझ सकते हैं। जो बड़ा सर्कल है ये आर्टिकल 14 डिनोट करता है, जो कि इक्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है इन द वाइडर सेंस। देन 15 आ जाता है, जो कि इक्वालिटी की वो भी बात कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है इक्वालिटी को और प्रोहिबिट कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन दोज 5 ग्राउंड्स। और उसके अंदर सबसे स्मॉल जो सर्कल है वो आर्टिकल 16 डिनोट कर रहा है, जो कि बताता है ये भी इक्वालिटी को डिस्कस कर रहा है, बट बहुत लिमिटेड सेंस में। वो कैसे? वो लिमिटेड है टू एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट मैटर ओनली। सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 16। इसका हम स्कोप समझेंगे, इसके ग्राउंड समझेंगे, और we'll understand the backward class, promotion, amendments, cases, and so many things. So let us start it. Now Article 16, what does it say? It says that there shall be equality of opportunity for all the citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. Right? This means Article 16 clause 1 states that there shall be equal opportunity for the citizens in the matter of employment or appointment to any office under the state. So the provision of equality is only applicable to the employment or offices which are held by the state, right? There are two things which comes out of this clause 1. पहली बात तो ये सिर्फ सिटीजन्स के अप्लाई होता है, और दूसरी बात ये कन्फाइंड है एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस की बात पे, राइट? तो उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी की ही बात कर रहा है ये। एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस के अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, उसमें इक्वालिटी की बात कर रहा है, और सिर्फ सिटीजन्स इसमें इंक्लूडेड हैं। सो दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 16(1) सेज। फिर आते हैं हम 16(2) पे, जो कि बात करता है कुछ ग्राउंड्स की। नाउ इट लेज डाउन 16(2) लेज डाउन द ग्राउंड्स ऑन विच द सिटीजन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड। किस लिए? अगेंस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द स्टेट। अब ये प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कौन से हैं? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, or any of them be ineligible for or discriminated against in respect or any employment or office under the state. So these prohibited grounds of discrimination, अब मैंने इसमें ये दो ज़्यादा हाईलाइट ऐसे करे हुए हैं बिकॉज हम जो 5 हैं मेन ये वही हैं 5, और ये सिर्फ 2 एक्स्ट्रा हैं, इसीलिए विच मेक्स देम टोटल 7 ग्राउंड्स, राइट? So Article 16 clause 1 talks about the scope, which lays down the provision for equal opportunity of employment in the public sector, right? और 2 भी बात ऐसी करता है डिस्क्रिमिनेशन की, कि वो प्रोहिबिट करता है और कुछ ग्राउंड्स इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल क्लॉजेस, दैट इज क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 4A, क्लॉज 4B,
6 is important, 5 is not that important, but yeah, so this article 16 till 6 we will understand. और इन दोनों के बाद अब मेन स्टार्ट होता है हमारा clause 3. Now let us understand what does clause 3 says. First let's give it a reading. Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to class or classes of employment or appointment to any office under the government or for any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment. इसने क्या है काफ़ी कुछ दिया, आपको मैं इसका ब्रीफ समझाती हूँ. That Article 16(3) says that Parliament have the power to give reservation on basis of residence. So it is an exception of Article 16(2). अब आप कहेंगे 16(2) तो बोलता है कि रेसिडेंस के बेसिस पे, इन बेसिस पे ये ग्राउंड है जिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. सो इट इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ दिस आर्टिकल. एंड क्या एक्सेप्शन है ये कि पार्लियामेंट पे पावर है वो रिजर्वेशन दे सकता है ऑन बेसिस ऑफ रेसिडेंस. अब ऐसा क्यों, रेसिडेंस की बात क्यों करिए? What is the reason of doing this, giving the reservation on basis of residence? See, so what happens is, because some areas of state are backward and are very less developed. In India, there are so many states and there are so many areas under those states which are so backward, and there is no advancement in them. There is a requirement to uplift it. सो इन दैट रिगार्ड उन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए वो रिजर्वेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? इसीलिए आर्टिकल 16 क्लॉज 3 बात करता है दैट पार्लियामेंट हैव द पावर टू गिव दैट रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस. सो अब हम एक बार रीड करते हैं इसको एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट डज इट से. नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट from making any law prescribing in regard to class or classes of employment or appointment to any office under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any requirement as to residence within the that state or union territory. Right? तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई. That 3, see article 16 clause 1 and 2, they lay down the provision for equal opportunity of employment in public sector. However, it is in clause 3, article 16 clause 3 states that nothing in this article shall prevent the parliament from making any law which prescribes to the citizens who are appointed to any office under the state in regard to any requirements as to residence within that state or union territory prior to the employment or appointment to any office under the state. As simple as that. Now let us further move with article 16 clause 4. ये बात करता है बैकवर्ड क्लास की. Article 16 clause 4 of Indian Constitution provides for the reservation of services under the state in favor of backward class of citizens. So let us read it and understand first that nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the service under the state. Now the state shall decide whether a particular class of citizen is backward or not. And अब backward class पे बहुत क्वेश्चन उठ जाते हैं, कौन होगा, कौन कैसे डिटरमाइन करेंगे. तो ये सब अब हम समझेंगे केसेस से. We have already done with the case of Balaji versus State of Mysore in under Article 15, जिसमें 2 कंडीशन दी गई थी टू डिटरमाइन द बैकवर्ड क्लास. पहली कंडीशन थी दैट पर्सन हैज़ टू बी सोशली प्लस एजुकेशनली बैकवर्ड. पहली कंडीशन हो गई, वो पर्सन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होना चाहिए. दूसरी, दिस बैकवर्ड क्लास शुड नॉट हैव द एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, उसका नहीं होना चाहिए सर्विसेज में.
तभी मिलेगी, तभी उसे बैकवर्ड क्लास कहा जाएगा, राइट। सो ये तो कंडीशन ले डाउन करी थी अंडर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में। बट फर्दर हम लोग चलते हैं इसमें, this case we were talking about Mr. Balaji versus State of Mysore, the two conditions were given. Then इसके ही साथ आता है केस देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सो दिस इज अ न्यू केस वी विल बी डूइंग टुडे, जिसे कहते थे कैरी फॉरवर्ड रूल भी कहा जाता था. अब ये कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, पहले ये समझते हैं. सी, अगर what happened earlier was if the seats were vacant, then those seats could be carry forwarded in the next year, right? आप ऐसे समझिए इसको with a pen, explain you. सपोज करिए ये कुछ जो हैं रिजर्व सीट्स थी और जो हैं ये वेकेंट रह गई, तो अगले साल इनको या जब भी इनको ये जो अनफिल्ड सीट्स थी इनको भर दिया जाएगा. इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ये इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड हो ही जा सकती हैं, राइट. सो नाउ what happened, that government supposedly added 17% seats in SC and ST favor, and seats which would be left unfilled could be added in the subsequent years. In then what happened is in 1961, out of 45, 29 seats were reserved by SC and ST. That is, therefore 64% seats were reserved. So what conclusion happened was, in this case it was said that if any reservation is above 50%, अगर कोई भी यहाँ पे रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा आपका एक्सीड करता है तो वो इनवैलिड कर दिया जाएगा, जिसका मतलब कि कैरी फॉरवर्ड रूल को भी इनवैलिड कर दिया जाएगा. ये कहा गया था देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, राइट. सो कैरी फॉरवर्ड रूल पहले हम समझें. व्हाट इज़ कैरी फॉरवर्ड रूल? अगर कोई सीट वेकेंट रह जाती है, अनफिल्ड कोई वेकेंट होती है, देन उसको कैरी फॉरवर्ड करा जा सकता है अगले साल, राइट. अब इसी के आगे केस आता है इंदिरा स्वामी का, जिसे मंडल कमीशन केस भी कहते हैं. नाउ मुरारजी देसाई सेट अप अ कमीशन इन 1979 विच इज़ कॉल्ड मंडल कमीशन, जिसके चेयरपर्सन बीपी मंडल थे. अब ये कमीशन क्यों बनाई गई इज़ अ क्वेश्चन. सो दिस कमीशन वॉज मेड टू इन्वेस्टिगेट दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन इंडिया, कि ये कौन होंगे, हम इसे कैसे डिटरमाइन करेंगे और फिर किस तरीके से रिजर्वेशन मिला जाएगा. ये डिटरमाइन करने के लिए ये कमीशन बनाई गई, राइट, टू इन्वेस्टिगेट दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास. अब इसने एक रिपोर्ट दी विच सेड दैट टोटल 3743 caste are there which constitute socially economically backward classes, and the committee recommended, अब इस कमिटी ने क्या रिकमेंड करा, that they should give 27% रिजर्वेशन, कि वो 27% रिजर्वेशन दें इन गवर्नमेंट जॉब्स. ये इस कमिटी ने, मंडल कमीशन में जो कमिटी थी, इसने यही रिकमेंड करा. इतनी कास्ट होंगी और इस तरीके से आप 27% रिजर्वेशन दें. अब फाइनली 1990 में प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने ये इम्प्लीमेंट भी करा और इस रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करा. 27% रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास दिया गया. अब आता है इस केस में 9 जजेस बेंच थी इंदिरा स्वामी के केस में.
जिसमें इन्होंने तीन इम्पॉर्टेंट बातें कही. व्हाट वाज दीज? पहली कि 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सही है एकदम. उन्होंने कहा ये 27% जो दिया गया है, जो कमेटी ने रिकमेंड करा है, एकदम सही है. और ये रिजर्वेशन, दूसरी बात जो कही, दैट दिस रिजर्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू द अपॉइंटमेंट एंड नॉट प्रमोशंस. तो इंदिरा सोहानी में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. उन्होंने कहा था कि दिस रिजर्वेशन इज ओनली एप्लीकेबल टू अपॉइंटमेंट एंड नॉट इन प्रमोशन. और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये कहा था. दो इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस दिस लिमिट कुड ऑल्सो बी रिलैक्स्ड, बट ये 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए. ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट डिसाइड हुई थी इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में. देन पार्लियामेंट फेल. What happened was, then the whole story goes like that. The parliament felt after this case that Indira Sohani's judgment is wrong, and they brought the 77th Amendment Act, through which Article 16(4)(a) was added under the Constitution. अब समझते हैं हम 4(a) क्या कहता है. आर्टिकल 4(a) says nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the services under the state in favor of SC and ST, which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. तो ये बात करता है सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 4(a), ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जिसके थ्रू 4(a) ऐड हुआ. This is an important part, and due to which now reservation is possible even in promotions for SC ST. इंदिरा सोहानी में उन्होंने कहा था कि प्रमोशंस में नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट ये अमेंडमेंट लेकर आया जिससे कि 4(a) ऐड करा गया और प्रमोशंस को पॉसिबल करा गया, इवन रिजर्वेशन को पॉसिबल करा गया इवन इन प्रमोशंस फॉर SC एंड ST. उसके बाद आता है हमारा 4(b) जो कि 81st हमारा अमेंडमेंट में हुआ, 81st अमेंडमेंट, जिसमें 16(4)(b) ऐड करा गया. इसके थ्रू 50% सीलिंग लिमिट जो थी रिजर्वेशन की फॉर SC ST वो ख़त्म कर दी गई, एंड कर दी गई है. वो कैसे, हम इसे पढ़ते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. Now, nothing in this article shall prevent the state from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or clause 4(a) as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. So, कुछ भी ऐसा इस आर्टिकल में प्रिवेंट नहीं करेगा एक स्टेट को क्या कंसिडर करने के लिए, एनी अनफिल्ड वैकेंसीज उस साल की जो कि रिजर्व्ड है फॉर बीइंग फिल्ड अप इन दैट ईयर, in which according to which provision 4 and 4(a) as a separate class of vacancy to be filled up in any succeeding year and shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining this 50% ceiling limit. तो ये जो है इसे ख़त्म कर दिया गया फ्रॉम आर्टिकल 4(b). देन आफ्टर बिफोर डूइंग फिफ्थ लेट अस मूव टू द अनदर केस ऑफ, हमने ये दो चीज़ समझी, आता है M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का इम्पोर्टेंट जजमेंट था, ये 2006 में हुआ था. Now what happened? It also talked about the reservation and promotion. It was said that 3 conditions
द स्टेट शुड फुलफिल, वो कौन सी 3 कंडीशंस होनी थी? पहली, to that the state should collect the quantifiable data showing backwardness of the class, right? Just a second, if we can clear this. Is there any razor? Okay, leave. Let us understand it this way only. देखिए, हम यहाँ पे समझ लेते हैं. We have space over here. 3 कंडीशन की बात करी गई थी. To collect the quantifiable data, एक सेकेंड, to collect the quantifiable data. सेकेंड बात जो करी थी वो था इनएडुकेसी. Okay, I'll just write it this way. Inadequacy of representation. और तीसरी बात जो करी थी वो करी थी efficiency of administration की, right? Efficiency of, आप ऐसे ही समझ लीजिए इसे, administration. Now first is the quantifiable data, second inadequacy of representation, and third efficiency of administration. So ये 3 कंडीशन रखी थी स्टेट पे जो कि फुलफिल होनी चाहिए. इसमें क्वांटिफिएबल डाटा कलेक्ट करने के लिए बोला गया जो कि दिखाए बैकवर्डनेस ऑफ द क्लास, या इनएडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, वो दिखा दे अगर स्टेट, या फिर इंश्योर कर दे दैट एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट रिड्यूस्ड वाइल गिविंग प्रमोशंस. सो ये रिजर्वेशन एंड प्रमोशन की बात हो रही है. अब क्या हुआ, इस क्राइटेरिया के वजह से, क्योंकि ये तो फुलफिल नहीं कर हो पा रहा था, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन एक बैक सीट पे आ गया और ये टफ हो गया. क्यों? क्योंकि क्वांटिफिएबल डाटा दिखाना या फिर एफिशिएंसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिखाना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, टफ हो गया था. सो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन बैक सीट पे आता चला गया. देन सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट इन 2018 और उन्होंने कहा दैट देयर इज़ नो नीड टू गिव दिस क्वांटिफिएबल डाटा एंड एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आप सिर्फ हमें इनएडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए, इतना तो बता ही सकते हैं. स्टेट को ये बोला कि आप सिर्फ इनएडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बता दीजिए और क्वांटिफिएबल डाटा इनएफिशिएंसी ऑफ उसको हम काट देते हैं. सो जस्ट टू प्रूव दैट क्लास हैव द इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन. अब व्हाट हैपेंस इज, see, understand this with the I'll explain you. In 2012 what happened, उत्तराखंड गवर्नमेंट, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट थी वहाँ तब, सो PWD नोटिफिकेशन, दे गेव अ PWD नोटिफिकेशन अंडर विच प्रमोशन नोटिफिकेशन was ignored, reservation and promotion was ignored. So they gave a promotion notification and under which this reservation and promotion was ignored. Then litigation started against it in High Court. अब हाई कोर्ट ने कहा that उत्तराखंड गवर्नमेंट ने गलत कराया और उत्तराखंड गवर्नमेंट फिर चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट से जो क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के पास, that whether the state to give the reservation and promotion, स्टेट का ये देना रिजर्वेशन एंड प्रमोशन एक डिस्क्रिशन है या ये कंपल्सरी मैंडेटरी है? क्या रिजर्वेशन एंड प्रमोशन एक फंडामेंटल राइट है या एक सिंपल स्टेट डिस्क्रिशन है? सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा दैट
state, government is not bound, but it is a government discretion to give the reservation in promotion. तो इसमें क्या कहा, डिस्क्रिशन की बात कर दी, राइट, डिस्क्रिशन की बात कर दी इन्होंने, आप ये समझ आइएगा, डिस्क्रिशन. So High Court and Supreme Court cannot compel the state to give the reservation in promotion. Therefore, it's not a fundamental right. Right? That's what Article 16, this reservation in promotion is all about. From M. Nagaraj versus Union of India, it got clear. Things went clear with so and so cases. अब हम समझते हैं 16 clause 5 क्या कहता है. Now let's come back after doing 4A, 4B, reservation in promotion, these cases. 5th is simple. ये कहता है, it says that if any religious institution have a office and to be a member of that office, the requirement is that one has to be of a particular religion. जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया, आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए, वक्फ बोर्ड हो गया, राइट. वक्फ बोर्ड, और वो वायलेटिव नहीं होगा हमारे 16(2) के खिलाफ. सो नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any member of a governing body thereof shall be a person professing a particular religion belonging to particular denomination. फिर 6 आता है हमारा, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. Now the thing in this, ये क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 ये बात करता है हमारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा की, जो कि हमारे 103rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था, अंडर विच EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वॉज गिवन दी 10% कोटा, राइट. सो let's read it. Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment or post in favor of any economically weaker section of citizen other than the classes mentioned in clause 4 in addition to existing reservation and subject to maximum of 10% of post in each category. तो ये जो है EWS कोटे की बात करता है. 16 clause 6 ऐड करा गया आफ्टर दिस अमेंडमेंट, जो कि बहुत ही जो है एक कॉन्ट्रोवर्शियल एंड बहुत इस पे वेरी डिबेटिक अमेंडमेंट एज टू EWS में. अब क्या हुआ, सारे जनरल, दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू कास्ट, व्हाट वाज सेड इंदिरा स्वानी एंड बालाजी, यही तो चीज़ कही गई थी कि कास्ट के बेसिस पे बैकवर्ड क्लास जो है डिटरमाइन करी जाएगी. अब इन लोगों ने तो EWS को ऐड करके क्या करा, जो जनरल कैटेगरी में जो भी पुअर सेक्शन है उसको भी ऐड कर दिया. पुअर सेक्शन को ऐड करने मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए भी ये कोटा हो गया. सो अब क्वेश्चन जो उठते हैं वो ये उठते हैं कि क्या ये डिटरमाइन करने के लिए हम बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देना सही है. सो दैट्स व्हाट ऑल थिंग इज अबाउट. 6 was added. So let's just see what we have done. First we have done with the scope, we have done with the grounds, we have done with the residence part, then further we have done with the backward class, then again these amendments and the religious institution clause and the EWS clause. Now thank you. In the next one we'll be doing about Article 17. Thank you.